guys, welcome back to my channel. This is Aparna Jatin Shah. For all those who are new here, अगर आपको content पसंद आएगा, please try and subscribe to our channel. And for all those who've been connected with us, thank you so much for all the appreciation. I love you guys. So हमने basically अपने Insta fam से पूछा था that what are the different topics that you want us to cover, because अभी हम sit down videos बहुत बना रहे हैं क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं. So we wanted ideas from our viewers only, what they wanted to see. There was this person जिन्होंने message किया था. She had requested me. She's also a Rajput. तो उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं भी राजपूत हूँ. And I know how difficult it is to go against the norms and family regulations and take any decisions. And apparently उन्होंने मेरा पहले का vlogs देखा था. So she said that she wants me to make a video for the women about the 5 most toughest decisions I've taken in life, and maybe वो कहीं ना कहीं सबको inspire करेगा to know that no matter what happens, आपके decisions अगर आप लेते हो and stand करते हो, they always prove right if you've taken the right decision and you stand on it. A lot of times बहुत लोग होते हैं जो नहीं support करते हैं, not because they don't love you but because they are overprotective for you. So मैंने बहुत decisions लिए, कुछ situations ऐसे आए that I'm going to discuss with you all, and I hope it helps you. अगर ये content आपको help करेगा, so please let me know in the comment box and consider subscribing, because I will be coming up with a lot of these videos for you. So when I started taking decisions for my own life was जब I had conceived आशिका, उसके पहले मैंने basically कोई भी decision अपनी life का अकेले नहीं लिया था. हमेशा में भी मैं एक तो बहुत ज़िद्दी थी, तो I used to stop eating और गुस्सा हो जाना. तो मम्मा और पापा eventually used to kind of give in, because मेरी बहुत crazy demands होती नहीं थी, बट वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी गलत होती थी जो अलाउ नहीं होता था हमारी फैमिली में. सो इवेंचुअली या तो पापा मम्मा गिव इन कर लेते थे, या मुझे समझ आता था भाई ये नहीं सुनने वाले, तो आई यूज टू गिव इन. बट व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज टोल्ड, मुझे कुछ इश्यूज आते थे. सो नॉर्मली हाउ यू कम बैक एंड टॉक टू योर मम्मा एंड दादी. आई यूज टू टेल माई दादी, दादी मुझे ना ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, एंड शी यूज्ड टू बी लाइक हाँ बेटा वो तो सही है, सबको आता ही है, लड़कियों को तो और फेस करना पड़ता है. और उनका हमेशा एक डायलॉग लास्ट में आता था, जिस घर पे डोली गई है उस घर से अर्थी ही उठती है. तो मुझे लगता था डूड, मतलब बोलना कि आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव तो बहुत ही ज़ोर से गलत हो जाएगा. सो व्हाटएवर इश्यूज केम, आई केप्ट टेकिंग, आई केप्ट गोइंग ऑन, बट आई विल नॉट डिस्कस कि मेरे मैरिटल इश्यूज क्या थे. That part once it got over and I came back with my daughter to Bilaspur. Basically Papa passed away around the same time. जब Papa went, I was just Ashika was just 7 months old. So though Raghu was there, he's my younger brother, but हमारे राजपूत brothers भी बहुत जल्दी mature हो जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि पापा के जाने से मतलब I've become ekdam alone, and we were used to, we are still very used to being dependent mentally on our male members of the family, whether husband, whether fathers or brothers. So though it's kind of lucky कि रघु था, but he was also struggling. Papa's sudden going, 26 years old था वो भी, he had a lot to manage of Papa. So but यहाँ पे रह के, बिलासपुर में रह के मुझे ऐसा लगा कि शायद आशिका की एजुकेशन उस लेवल पे नहीं होगी. मुझे ग्राउंड रूल्स था मेरी लाइफ का आज भी है, that the only thing that has to come to Ashika, the best is education. I don't believe too much in Ashika's clothes have to be nice, Ashika should have this and that. I just feel if you educate your child well, वो सब अपने आप बना लेते. So the first boldest decision that I took of my life was, I had moved to Pune with Ashika when she was 1 year old. I was a first time mother. मुझे भी बहुत कम पता था about raising the child, but because मुझे ऐसा लगा कि आकू का play school और उसका environment will be better there. Mama had lost Papa. We had all lost Papa, but the biggest loss was Mama's. And I still decided to move. I told Mama I want to give the best. I know whatever's happened, you can come and stay with me. You can stay with Raghu. He was about to get married.
बट या दैट टाइम मम्मा वॉज नॉट इन द माइंड फ्रेम टू ट्रैवल, सो शी सेड बेटा मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली. सो फॉर दैट टाइम आई हैड मूव्ड अलोन, पूरा सामान आकू को लेके. It was a very tough decision, but I am so glad that I took that decision, because from there that was like my, वो मेरा सबसे पहले मोमेंट था जहाँ आई न्यू कि मैंने अगर डिसीजन लिया है, और बोल्ड डिसीजंस लेने भी अपने बच्चे के लिए कितने राइट प्रूफ कर सकते हैं. सो इनिशियली वो थोड़ा सा टफ था, बिकॉज जब हम शिफ्ट हुए थे आकू के संग, आई रीच्ड, मेरा ट्रक पहुँचा था सामान का अराउंड 1 o'clock एट नाइट, और मैं वहाँ गई तो वहाँ मताड़ी आ गए थे. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो अबाउट दिस. हम नॉर्थ में रहे थे तो हमें नहीं पता था. जो आते हैं एंड दे जिससे कि आप जिस एरिया में आपका ट्रक उतर रहा है, वी विल अनलोड ऑल द सामान. नाउ आई ऑलरेडी हैड सम पीपल टू अनलोड माई सामान. सो दे सेड अगर नहीं भी आप कर रहे हो, यू स्टिल हैव टू पे अस सम अमाउंट, बिकॉज आप हमारे एरिया में सामान अनलोड कर रहे हो. ये मैंने कभी, आई स्टेड इन सो मेनी प्लेसेस इन नॉर्थ, बट मैंने कभी भी ये देखा नहीं था. सो आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, एंड मुझे लगा कि ये गुंडागर्दी क्यों है. 12 बजे रात को आई वॉज डूइंग ऑल दिस. देन आई कॉल्ड अप अ फ्रेंड ऑफ माइन इन पुणे. ही सेड अपू ऐसा होता है, आई विल कम, तुम पैसे दो, मैं आ रहा हूँ हैंडल करने, बट डोंट फाइट विद देम. दिस इज द रेगुलर वे दैट इट हैपन्स इन महाराष्ट्र साइड स्पेशली. सो वो मेरे लिए सबसे पहला था. देन सेकेंड वॉज जब सामान शिफ्ट हो रहा था ऊपर नीचे, मतलब घर ट्रक से ऊपर जा रहा था. Now Raghu couldn't come because उसके बहुत पेपर वर्क्स पापा के बाकी थे. So I was all alone and I had not kind of called any friends and all. किसको अब रात को आप परेशान करो. So all the सामान that was going up down. अब आपको मेरे गोदी में 1 साल की, तो मैंने एक बेडशीट बिछा रखा था on the ground and I was making sure सामान आ रहा है जा रहा है. She was also there. So that was also a very tough thing. आज तक लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट था. Aku was very close to my brother and mama, so she used to call them Nanna and Mama. तो उसको पता नहीं था ना कि हम शिफ्ट हो गए हैं, प्लेसेस डिफरेंट हो गई हैं. वो हर पर्दे के पीछे जाके she used to think कि हम जहाँ खेल रहे हैं, you know, peekaboo. So she would cry and go behind every curtain initially and think नन्ना है, मामा है. सो उस टाइम मैं थोड़ा सा हिली थी कि मेरा शायद डिसीजन इमोशनली तो नहीं हैम्पर कर देगा आशिका को, बट इवेंचुअली आई थिंक थोड़े टाइम में शी अंडरस्टूड. आई हैड अ अमेजिंग मेड, माई स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स वर अमेजिंग. सो देन शी काइंड ऑफ गॉट ओके. बट वो वाला टाइम वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, जब आई फेल्ट दैट मे बी मेरा डिसीजन इज हैम्परिंग हर इमोशनली, बट थैंकफुली इट डिडंट. द नेक्स्ट डिसीजन दैट आई टुक, आई वॉज मीटिंग अ लॉट ऑफ people through friends, जो you know शादी के point of view से I had met some people, but I wasn't sure. I was, वो एक point के बाद आप as a wife नहीं देखते हो, as a girlfriend नहीं देखते हो आप. एक point के बाद मेरा जो second marriage था, I was not looking for a husband, I was looking for a father, because I was very sure कि he had to be a very good father to Ashrika. So जब जतिन and I kind of thought of marriage, हमने सिर्फ अपनी families को बताया था. एंड ये मैंने किसी को बोला नहीं था, माई साइड ऑफ द फैमिली और हिज, बट आई हैड टोल्ड हिम कि साइन कर लेते हैं शादी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स द वे टू गो अबाउट इट इन आर फैमिली. बट उसके बाद वील स्टे टुगेदर फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर वी टेल दिस आउट टू पीपल, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर इफ दिस डजंट वर्क आउट, बिकॉज यू नो दूर से बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स बड़े क्यूट लगते हैं, बट आई हैड चेंज्ड अ लॉट बिकॉज आई वॉज अ मदर देन. आई हैड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आशिका वॉज अ पार्ट ऑफ माई only the biggest responsibility that I had. So I had told him कि अगर 6 months में things don't work out, हम silently divorce papers वापस से sign करेंगे and we'll end it here and nobody is supposed to know. But thankfully 6 months के बाद things were still fine. So उसके बाद भी, but what I did was, वो I think सब बोलते हैं कि आप पागल थे, but मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा बहुत सही डिसीजन था. मैंने क्या किया, ही टोल्ड मी नहीं बाबा, मैं 6 months में आई एम स्टिल हैप्पी विद यू, आई एम ओके टू गो अहेड एंड यू नो do the मंदिर वाला शादी and tell people about it. So I told him, यार you are okay, first you make me meet your mom.
बिकॉज ना बहुत केसेस में हस्बैंड वाइफ्स का सब ठीक होता है, इन लॉज के चलते बहुत गड़बड़ हो जाती है. तो आई मेट मम्मा and then I told her this is the situation and Jatin and I want to go ahead with the whole process of marriage and telling people अभी हमने सिर्फ ऑन पेपर्स किया है, जो भी करना है. तो इफ़ यू आर ओके विद इट तो ही मैं शादी करूँगी. बिकॉज ऑफन हस्बैंड वाइफ्स का इश्यूज़ ही इन लॉज के चलते ही नहीं आता है, बट जिस तरीके से इन लॉज हैंडल करते हैं वो बहुत मैटर करता है आगे, मुझे ऐसा लगता है. तो देन मैंने मम्मा को एकदम मतलब एक Q&A हो गया था मेरा और मम्मा का. ऐसे कि आपको जो पूछना है पूछ लो, मुझे एज अ मदर टू माई चाइल्ड, मैं आपकी फैमिली में आ रही हूँ तो मुझे जो जो कन्फ्यूजन है मैं वो क्लियर कर लूँगी. फिर मम्मा आप और मैं डिसाइड करेंगे कि मुझे आपकी फैमिली में आना चाहिए या नहीं. एंड जैसे इट्स लाइक डूड आई एम ऑल्सो हियर. आज एक आपके संग तो चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी, मेरे को और मम्मा को खुश रहना है साथ में. सो या दैट एवरीबडी सेज that was a very dumb thing, but till date I am very happy because things were very clear between me and my mom-in-law, what expectations she had and what expectations I had as a because even to her I told her ना कि मैं बहू बन के पहले नहीं आ रही हूँ, पहले मैं एक माँ बन के आऊँगी, फिर सेकेंडरी मेरा बहू होगा. that will be my second role to play. next जो मैंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था वो मेरे जतिन, मेरे ब्रदर, सबके संग I was इमोशनली से ज़्यादा I was financially making my own decisions and I told Jatin also कि financially I'm going to keep things a little more secured for me because Aku was involved. तो शुरू में उनको ऐसा लगता था I didn't trust him. अब लेकिन he also understands and respects that fact, but शुरू में वो मेरे लिए बहुत बोल्ड था because हमारे फैमिली में मैंने नहीं देखा था मम्मा को या हम लोगों को जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और डिसीजंस लेते हैं, वो सब नॉर्मली हमारी फैमिली में भी और जतिन की फैमिली में भी सब हस्बैंड्स, ब्रदर्स, काकाज एंड बापूजी एंड वो सब करते हैं. दो धीरे धीरे आफ्टर एन ईयर ऑफ मैरिज व्हेन आई गॉट क्लोज टू काका एंड Jatin's grandfather, I used to tell them everything, but शुरू में I was very scared कि my financial decisions I don't want anybody else to take, और मेरी savings, मेरे आकू के my paperwork were very strong. So yeah, those are the bold decisions I took because I had Ashrika, and but thankfully it came out as a very big respect. Jatin's grandfather started respecting me. I love जतिन के फादर नहीं है, मेरे फादर नहीं थे, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मेरी फैमिली में जतिन के संग कि बापूजी और काका के रहते में मेरे पास फादर नहीं है. कोई भी डिसीजन हुआ या कोई भी इमोशनल टर्मोइल आई वेंट थ्रू, दे स्टूड थ्रू सो स्ट्रांगली. सो व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबडी हियर इज़, अगर आप अपने डिसीजन सही लेते हो, कभी कभी थोड़े से बोल्ड साउंड करते हैं, बट इवेंचुअली मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि बड़ों को ना कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो. ऑल दैट मैटर्स इट, आप जो कर रहे हो उससे आप खुश रहो. उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मैंने देखा है मेरी फैमिली और जतिन की फैमिली में तो वो मैटर नहीं करता है. जैसे ही आप उनको पूरा डिसीजन बता के बताओगे आप कैसे खुश हो, उनका एक ही आंसर होता है हाउ बेटा. सो आई हैव रियलाइज कि एल्डर्स से ना डरने की जगह अपनी सारी बातें मन से उन्हें बता दो और उन्हें बता दो कि आप क्यों उस डिसीजन से खुश हो. बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो समझते नहीं हैं. एटलीस्ट इन माई केस आई वॉज लकी. बिलासपुर मम्मा, माई जतिन्स काका एंड बापूजी, वो तो हर चीज़ मेरी समझ जाते थे जब भी मैंने उन्हें कुछ समझाया या अपना डिसीजन बताया. सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल द लेडीज़ आउट देयर, it does not mean you have to go against your family, but if you do decide to take a decision, please take a decision for your good and make sure that you explain that to your elders. In most probability कोई मना करता नहीं है. हमारा तरीका बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन ले लेते हैं, एल्डर्स को समझ नहीं आ रहा होता है और हम शुरू हो जाते हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ, मेरे को तो ऐसे ही करना है, मेरे लिए वो सही है, मुझे पता है. द मोमेंट यू कम टू दैट ट्रैक ना, तो एल्डर्स डर जाते हैं कि एक तो इसको समझ नहीं आ रहा और ये सुन भी नहीं रही है. तो आप अगर उनको बैठ के समझाओगे 99.9% वो समझेंगे एंड दे विल सपोर्ट यू. और जब वो एल्डर्स का सपोर्ट एट द बैक ऑफ योर माइंड रहता है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ सकते हो ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जब आप अकेले आगे बढ़ते हो.
So yeah, these are the things I wanted to tell as a Rajput girl who carved her own destiny and is doing wonderful. So अगर आपको अच्छा लग रहा है content, please subscribe to our channel, and until I see you guys again, keep shining.